एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड दैट वन, ये इंपॉर्टेंट था, कल थोड़ा प्रॉब्लम था बच्चों को, है ना। सो बिफोर गोइंग टू दैट वन, ये कांसेप्ट समझेगा और भी अच्छे से जब हमें एलिड एंगल का कांसेप्ट समझेगा, एलिड एंगल्स का। तो देखिए यहाँ पे एलिड एंगल्स के पहले देखिए, फिर उसके बाद हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वी सी द कांसेप्ट ऑफ एलिड एंगल्स। सो व्हाट इज बाय एलिड एंगल्स, ये ना। सो एज फार एज एलिड एंगल इज कंसर्न्ड, जैसे एलिड एंगल्स के बारे में पता है, ये अपना पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट वन। Then afterward here, it is nothing but, as we know that the signs of all trigonometric functions in different quadrants are there. जैसे कि सबको मालूम है साइन अलग-अलग क्वाड्रेंट्स में अलग-अलग हैं, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन अलग-अलग है। जैसा if you are talking about the first quadrant in which all trigonometric functions are positive here. When you are talking about second one, in the second quadrant, sine and cosec are positive, remaining are negative. Then next is that as far as third quadrant is concerned, in that case we can say that here tan and cot are positive, and as far as fourth is concerned, cos and sec are positive is that one. Now the condition is that whenever we are talking about this one, it is starting from 0 degree, then we reaches to the 91, then afterward 180, then afterward 390, and then we complete the round, that is nothing but 2 pi is there. After completion of one round, we got here 360 degree, or is called as a 2 pi radians is there. So you know very well about this one, pi by 2, or it is also called as a 90 degree is that one. Pi is also it is called as a 180 degree is there. 3 pi by 2, or it is also called as a 270 degree is there. And then 2 pi, or it is also called as a 360 degree in terms of degrees there. Pi by 2 means 90 degree, pi means 180 degree, 3 pi by 2 means 270 degree, and 2 pi means 360 degrees there. अब सबके quadrant की position मालूम है. In first quadrant all trigonometric functions are positive. In second quadrant sine and cosec are positive. In third quadrant tan and cot are positive, and in fourth one cos and sec are positive in that one. So listen carefully here. As far as allied angle is concerned, in that allied angle, उसके बाद और एक concept, allied angle के लिए ये important है. अब ये 90 है ना, this is a 90 angle. 90 माइनस अगर से बोलेंगे अपन, तो 90 माइनस मतलब 90 से कम. If we are talking about 90 plus मतलब 90 से ज्यादा, मतलब we are talking about second quadrant. उसी तरीके से ये pi, pi means 180. Whenever we are talking about 180 minus, means we are talking about second quadrant, and whenever we are talking about 180 plus, it means we are talking about third quadrant is there. So similarly, if we arrive at the position of 2 pi, इसके बाद ये 3 pi by 2, 3 by 2 minus मतलब third quadrant, और 3 pi by 2 plus मतलब fourth quadrant, means 3 pi by 2 से ज्यादा मतलब कहाँ पे जाएगा, चौथे quadrant में. 3 pi by 2 से कम मतलब कहाँ पे, तीसरे quadrant में. Okay, now then afterward, after taking this one, similarly if we arrive the position of this one, 1 minute, some students are joining it. Yes, okay. So here when we arrive the position of 2 pi, so if it is 2 pi minus means it is the fourth quadrant is there, and 2 pi plus means again it comes to be the first quadrant in that one. So these are the quadrants in that one. ये याद नहीं रहना चाहिए, जब भी हम 90 माइनस बोलेंगे तो हम कहाँ के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में. 90 प्लस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट. 180 माइनस बोल दिया मैंने तो समझ में आना चाहिए कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं. 180 प्लस बोल दिया तो समझ में आना चाहिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं. उसी तरीके से 3 pi by 2 minus, 3 pi by 2 minus मतलब 3 pi by 2 से कम, we are talking about third quadrant, and 3 pi by 2 plus means we are talking about fourth quadrant. Similarly 2 pi plus बोल दिया तो पहला क्वाड्रेंट, और 2 pi minus बोल दिया तो चौथा क्वाड्रेंट. दिस वन 2 pi से कम मतलब फोर्थ वन, 2 pi से ज्यादा मतलब फर्स्ट वन. Now as far as this concerned, what about the allied angles here, it is important one. allied angles में एक concept ऐसा है कि यहाँ पे जो है जब भी एंगल में 90 के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, मतलब कैसा, दिस वन
For example, this one, sine of 90 minus theta. Then afterward, cos of 90 minus theta. Then afterward, tan of 90 minus theta. Then fourth one, cot of 90 minus theta. Then fifth one, sec of 90 minus theta. And sixth one, cosec of 90 minus theta. तो क्या होगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये होगा एंड एंगल्स है ना। मैं शॉर्ट में बता रहा है यहाँ पे एकदम शॉर्ट में, तो इसके बाद अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ये अभी जितना आपने एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट के लिए लग रहा है उतना ही बता रहा है सिर्फ, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कैसे बोलेंगे, इसका मतलब 90 माइनस थीटा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर से देखेंगे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है इसमें पॉजिटिव है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सबसे पहला काम दो चीजें देखेंगे। फर्स्ट वन, एंगल में अगर से 90 है तो सबसे पहले ये देखो, इफ इन द एंगल 90 इज देयर तो साइन का क्या होगा cos इज देयर, ये फर्क पड़ेगा। एंगल में अगर से 190 है तो साइन का क्या होगा cos। उसके बाद आप देखेंगे ये प्लस है क्या माइनस है, तो प्लस है क्या माइनस है देखने के लिए, जैसा कि 90 माइनस थीटा है मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता प्लस, तो इस कारण से क्या आएगा प्लस cos थीटा मतलब ये cos थीटा इज देयर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन। तो सेकंड में cos ऑफ 90 माइनस थीटा में सबसे पहले तुम क्या देखेंगे, सी नो इन दैट cos ऑफ 90 माइनस थीटा में सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में क्या है। तो इसके एंगल में 90 है, तो 90 का cos के अगर से एंगल में 90 है तो cos का क्या होगा sin। अब रहा सवाल इसके प्लस का माइनस का, तो cos के एंगल में 90 माइनस थीटा मतलब ये आ गया पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में भी cos क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। उसी तरीके से tan के एंगल में 90 है तो tan का 90 क्या होता cot, और 90 माइनस थीटा वाली वजह से पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली cot का क्या होगा tan। दो चीजें देखने का, एंगल में 90 है तो cot का क्या करें सबसे पहले tan, और ये थीटा के प्लेस पे थीटा। अब इंपॉर्टेंट है साइन कौन सा आएगा प्लस का माइनस, इट इज अ प्लस, डेफिनेटली इट इज प्लस। व्हाई इट इज प्लस, बिकॉज़ 90 minus theta means it lies in first quadrant. In first quadrant, all trigonometric functions are positive. So cot is also positive here. उसके बाद sec के एंगल में अगर से 90 minus theta आएगा तो हम क्या करेंगे, sec के 90 minus theta मतलब sec का क्या होगा cosec, प्लस का माइनस प्लस, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या है पॉजिटिव है, और cosec ऑफ 90 minus theta का क्या होगा sec theta, प्लस का माइनस इट इज अ प्लस 1। तो जब भी एलिड एंगल्स में एंगल के मल्टीप्लिकेशन में 90 है तो उस टाइम पे दो चीजें, पहला अगर से साइन के एंगल में 90 है तो पहले साइन का क्या होगा cos, उसी तरीके से cos के एंगल में 90 है तो क्या होगा sin, tan के एंगल में 90 है तो क्या होगा cot, cot के एंगल में 90 है तो कितना होगा tan, sec के एंगल में 90 है तो cosec, और cosec के एंगल में 90 है तो sec। ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है उसका sin क्या होगा उसका, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होने के कारण सभी क्या है पॉजिटिव, 90 माइनस मतलब सबके सब पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहता पॉजिटिव, इस कारण से वो क्या है पॉजिटिव है। अब चलो अगला, अब किसी ने इसको ऐसा कर दिया 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, तो अब इस पे कैसे रहेगी ये देखो। तो सबसे पहले एंगल देखेंगे, साइन के एंगल में अगेन 90 है तो साइन का क्या होगा cos, तो उसका साइन देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब आगे चलेगा 90 से आगे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा प्लस। अगला आ जाओ, cos के एंगल में 90 है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा साइन, और यहाँ पे जो रहेगा वो साइन थीटा, एंगल में 90 है तो cos का क्या हो गया साइन, और ये थीटा के प्लेस पे थीटा। अब क्वेश्चन है प्लस आएगा क्या माइनस, तो cos के एंगल में 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता पहले साइन और कोसेक, और बाकी सब क्या रहते माइनस में, तो cos का निकालते समय ये क्या रहेगा माइनस साइन थीटा इससे है। ओके, सिमिलरली tan के एंगल में 90 है तो tan का क्या होता cot, cot थीटा, प्लस का माइनस ये भी क्या आएगा माइनस,
क्यों, तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंगल में कितना है, पाई बाय 2, तो कॉट का क्या होगा, tan, प्लस क्या माइनस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक के एंगल में क्या है 90, सेक का क्या होगा, कोसेक। अब देखो सेक का हो गया कोसेक, मतलब ये प्लस है तो बोलेंगे सर कोसेक पॉजिटिव है, जिसका फाइंड कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। अपन निकाल रहे सेक का, सेक का 90 प्लस थीटा, तो सेक के एंगल में 90 है तो उसका क्या हो गया, कोसेक। अब रहा प्रश्न सेक का, सेक 90 प्लस थीटा मतलब सेक सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है, सेक क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और अब कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, कोसेक के एंगल में 90 तो कोसेक का होगा सेक। अब इसका प्लस का माइनस, अब देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक कहां पे गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता प्लस, तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आएंगे, it should be a negative one because they are 90 plus theta means they lies in the second quadrant, और second quadrant में सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव और बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो, अब समझो कभी एंगल में ऐसा आ गया पाई बाय 2 नहीं आके 3 पाई बाय 2, 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 मतलब क्या, पहले माइनस करेंगे, माइनस 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 अगेन माइनस अगेन माइनस एंड देन माइनस। अब सबसे पहला काम देखो, यहाँ पर सबसे पहली दो चीज से बताया मैंने यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, एंगल में क्या है वो देखेंगे। तो एंगल में अगेन 3 पाई बाय 2 मतलब 390, 390। तो देखो एंगल में अगर से 890, देखो क्या होता है, एंगल में अगर से 890, उसी तरीके से 390, उसी तरीके से 590, उसी तरीके से यहाँ से बताता हूँ अच्छे से दिस वन। और यदि एंगल में 8 पाई बाय 2 मतलब खाली पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऑड नंबर्स अपन कैसे लिखते हैं, 2n + 1 इनटू कितना पाई बाय 2। तो याद रखो क्या बोल रहा है, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। इफ इन द एंगल इफ देयर इज अ 90, 390, कैसे नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर, 1 के बाद 390, 590, 790, 990 और कितना 2n + 1 90, इतना सा ऑड नंबर ऑफ 90 रहेगा। तो उस समय क्या क्या होगा, उस समय साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कब, जब एंगल में क्या है 90 है। तो 890 क्या नहीं, 190, 390, 590, 790, 90 के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा, तो देखो 190 के बाद अपन 390 क्यों लिए, अपन 290 नहीं ले सकते, 290 अगर से ले लिए ना तो 2 गेट्स कैंसिल, 90 नहीं रहेगा, वो कितना हो जाएगा 180 इज देयर। और अपन क्या बोल रहे हैं, 90 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाले नंबर्स अगर से हैं तो उस टाइम पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। कब, यदि एंगल में 90 के मल्टीप्लिकेशंस में है, 90 के मल्टीप्लिकेशन में 4 आ सकता है, क्या बोलोगे 490, तो 490 बोल तो सीधे सीधे कोई भी सामने वाला बोलेगा 490 क्या है, ये इसको कैंसिल करो, सीधे सीधे तुम्हारे पास कितने 2 पाई है, मतलब तुम्हारे पास कितने 360 पाई के मल्टीप्लिकेशन में होगा, नहीं ये 90 के मल्टीप्लिकेशन में है क्या, नहीं है। इसलिए 90 के मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ कौन से नंबर आएंगे, ऑड नंबर्स आएंगे। 1 के बाद 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7। तो ऑड नंबर्स 90 के मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ऑड नंबर्स रहेंगे तो सबसे पहले एंगल में 390 है, मतलब ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90 with 3, तो ये हो गया साइन का क्या हो जाएगा कॉस, पहली बात। दूसरी बात, अब तुम इसका साइन चेंज कर, साइन चेक करेंगे, साइन प्लस है कि माइनस है, तो साइन प्लस है कि माइनस, देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब ये होगा तुम्हारा 3 पाई बाय 2, ये पूरा कंप्लीट। 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब क्या बोला मैंने, इससे कम, इससे कम मतलब कहां पे थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या है, थर्ड में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव, इसलिए ये कितना आएगा माइनस cos थीटा। उसी तरीके से cos 3 पाई बाय 2, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एंगल में क्या है, एंगल में 390 मतलब 90 के मल्टीप्लिकेशन में, तो जब भी 90 के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो cos का क्या होगा साइन,
अगेन ये कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस। नाउ अगेन tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो एंगल में 90 है तो tan का क्या होगा cot, tan का क्या होगा cot थीटा। अब बोलो प्लस का माइनस, तीसरे में tan क्या रहता प्लस, तो ये प्लस 1। अगेन cot का क्या होगा tan, अगेन ये थर्ड में तो क्या मिलेगा प्लस। sec के एंगल में 90 है तो sec का क्या होगा cosec, और प्लस क्या माइनस, माइनस इज देयर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी क्या है माइनस। अगेन cosec, cosec of 3 pi by 2 minus theta means sec theta. Yes, whether it is positive or negative? Yes, definitely it is negative. क्यों? क्योंकि 3 pi by 2 minus theta मतलब ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन क्या रहेगी माइनस। ओके, अब चलो, अब समझो मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसे नहीं पूछते हुए तुमको मैंने ऐसा दे दिया, समझो अगला एंगल ऐसे दे दिया, ये प्लस हो गया, 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 ये प्लस हो गया। अब मेरे को बोलो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पहली स्टेप क्या है, एंगल चेक करो, एंगल में क्या है 90 के मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन का क्या होगा cos। दूसरी स्टेप साइन चेक करो, साइन क्या रहेगा इसका, तो 3 पाई बाय 2 प्लस इससे ज्यादा, 3 पाई बाय 2 से ज्यादा मतलब चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या है ना माइनस। cos के एंगल में 90 है तो cos का क्या होगा sin, प्लस का माइनस प्लस, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या रहता पॉजिटिव, तो ये प्लस का। सो tan के एंगल में 90 है, 390 है तो tan का क्या होगा cot, प्लस का माइनस माइनस, चौथे में क्या रहता नेगेटिव। देन नाउ देन अगेन हियर cot के एंगल में 390 है तो ये क्या होगा tan, प्लस का माइनस इट इज अ माइनस। sec के एंगल में 90 है तो क्या मिलेगा cosec, अभी प्लस का माइनस इट इज अ प्लस, क्योंकि sec चौथे में क्या है पॉजिटिव है, और लास्ट में cosec के एंगल में 90 तो उसका मिलेगा sec प्लस का माइनस इट इज अ माइनस 1, ये होगा। तो इस तरीके से हम कौन से भी एंगल 90 के मल्टीप्लिकेशन में 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसा ऑड नंबर ऑफ 90 के इसमें आएगा तो क्या होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। दूसरी स्टेप हम क्या चेक करेंगे उसका साइन, साइन किसके हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो क्वाड्रेंट की पोजीशन सबको मालूम है, पहले में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक, तीसरे में कौन tan और cot, तो चौथे में कौन cos और sec, ये पॉजिटिव रहेंगे। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये अभी तक के लिए इतना ही लगेगा अपने को, इसके आगे भी निकाल सकते हैं अपन, 5 पाई बाय 2 को भी निकाल सकते हैं, 7 पाई बाय 2 को निकाल सकते हैं, ये अपन डिटेल में देखेंगे, मगर अभी आर्गुमेंट के लिए इतना बेसिक ठीक है, ये देखो इस समझ में आ गया तुम्हारे। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट अली एंगल्स में क्या है कि एंगल में अगर से 90 नहीं होगा, एंगल में अगर से 180 रहा तो उस टाइम पे क्या, तो देखो सबसे पहले बताओ, अब तो समझ एंगल में आएगा पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, cot ऑफ पाई माइनस थीटा, sec ऑफ पाई माइनस थीटा and cosec of pi minus theta. Listen my words carefully here. Whenever in the trigonometric function, if it is in the multiplication of pi, pi के multiplication में अगर से आएगा तो उस टाइम पे sin का क्या होगा sin, ये बहुत डिटेल में क्यों आएगा, क्योंकि इसका अपने को ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ अगर से देखेंगे अपन तो देखो अभी शॉर्ट में बताता है, यहाँ पे sin का ग्राफ ऐसा था, sin 0 0, sin 91, sin pi फिर 0, sin 3 pi by 2 minus 1, sin 2 pi 0, मतलब क्या sin 0 की वैल्यू 0, pi की वैल्यू 0, 2 pi की वैल्यू 0, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड द वैल्यू रिपीटेड इटसेल्फ, एक पीरियड के बाद वैल्यू क्या होती है, आफ्टर सर्टेन पीरियड द वैल्यू गेट्स रिपीटेड इन दैट वन, सो बिकॉज़ ऑफ दैट if the angle pi is there, so again it comes to be sin. If in the angle cos, cos के एंगल में pi है तो again it comes to be a cos is there. tan के एंगल में pi है तो क्या आएगा cot, tan के एंगल में tan ही आएगा सेम, cot के एंगल में pi है तो cot ही आएगा, sec के एंगल में pi है तो sec, और cosec के एंगल में pi है तो cosec की जगह पे cosec ही आएगा।
Okay, the important thing is that in the angle if there is pi then it is same का. अब इसके बाद इसका दूसरी स्टेप, अब कितना 8 पाई क्या नहीं, ऐसे कौन कौन से, if in the angle 1 pi then 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi ऐसे कितने पाई अप टू n pi. मतलब अगर से एंगल में 1 पाई रह गया, 2 पाई असेल, 3 पाई असेल, 4 पाई असेल, 5 पाई असेल और अप टू n पाई. So in that case, in that case you have to remember here, if there is a sine and in the angle pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, whatever may be pi, तो sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec, सेम आएगा. तब यदि एंगल में क्या है 1 pi, 2 pi, 3 pi, in the angle there is a 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi और so up to n pi. तो ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए. क्या क्लियर होना चाहिए, एंगल में 190, 390, 590, 790 ऐसे अगर करेंगे 90 के मल्टीप्लिकेशन में तो उस टाइप का चेंज. कैसा चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक. एंगल में अगर से 90 के मल्टीप्लिकेशन में है तो, और एंगल में अगर से पाई के मल्टीप्लिकेशन में, वो भी कैसे मल्टीप्लिकेशन में, 1 पाई के बाद 3 पाई नहीं, इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ऐसे n पाई रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा. साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक. अब रहेगा सवाल इसके साइन का, तो तुम आराम से निकाल सकते हो. साइन के एंगल में पाई माइनस थीटा, पाई कहां पर है, ये पाई, पाई माइनस थीटा बोला मैं तो कहां पे हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में. पाई माइनस मतलब पाई से कम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, प्लस, तो इट इज अ प्लस. साइन और कोसेक प्लस और बाकी सब क्या, माइनस माइनस माइनस, और कोसेक क्या रहेगा. ओके चलो, अब कभी कभी ऐसा आ गया पाई प्लस थीटा, 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 पाई प्लस थीटा. तो अब बोलो कैसा आएगा. सबसे पहले तुम क्या चेक करेंगे, एंगल में क्या है. तो एंगल में है 180, तो सबसे पहले साइन का साइन. अब इसका साइन क्या रहेगा, व्हाट इज द साइन ऑफ दैट वन, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, साइन के एंगल में 180 है तो साइन का क्या आ गया, साइन. अब इसका साइन क्या आएगा, मतलब साइन मतलब प्लस आएगा क्या माइनस आएगा. तो 180 plus means it moves to the third quadrant, and in the third quadrant only tan and cot are positive. इसका मतलब साइन क्या हो गया, नेगेटिव. अगेन cos के एंगल में पाए तो cos का cos, प्लस का माइनस, इट शुड बी अ माइनस. सिर्फ कौन प्लस आएगा यहाँ पे, tan का और cot का दोनों प्लस रहेंगे. बाकी sec ऑफ पाई माइनस पाई प्लस थीटा, सेक का क्या मिलेगा, सेक प्लस क्या माइनस माइनस, कोसेक का क्या मिलेगा, कोसेक प्लस क्या माइनस माइनस. कर दो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. चलो इसको आगे और एक्सपांड करेंगे. समझो कभी ऐसा आ गया 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, अगेन 2 पाई माइनस थीटा, अगेन 2 पाई माइनस थीटा, और लास्ट में भी 2 पाई माइनस थीटा. तो अब मेरे को बोलो कितने स्टेप्स ऑब्जर्व करेंगे अपन, 2 स्टेप. सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि एंगल में क्या है. एंगल में अगर से देखेंगे तो एंगल में पाई है ना, एक पाई नहीं मतलब 2 पाई, मतलब पाई के मल्टीप्लिकेशन में क्या ये होता है ना, 1 पाई रहने दो और 1 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया. ओनली पाइस कंपलसरी. अगर से एंगल में पाई है तो सबसे पहला काम, फिर 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, कितने पाई रहने दो, सबसे पहला काम साइन का साइन. अब बोलो ये प्लस क्या माइनस, 2 पाई मतलब यहां पे आ गया ये 2 पाई 360, 360 में से कम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता, माइनस. cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, एंगल में 2 पाई तो cos का cos प्लस क्या माइनस प्लस, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद tan कितना आएगा, tan का tan प्लस क्या माइनस माइनस,
tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। कल आया था ना ऐसा आर्गुमेंट निकालते समय ये भी आया था tan ऑफ पाई माइनस थीटा, मैंने बताया था ये होता माइनस tan थीटा। तो ये राइट एंगल के हिसाब से था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे cot of 2 pi minus theta minus cot theta, sec of 2 pi minus theta is nothing but it is a plus sec theta and it is nothing but minus cosec theta is there। तो ये है, ऐसा है एंगल एंगल्स। ये एंगल एंगल्स का बेसिक है, इसको डिटेल में नहीं है, सिर्फ अपने लिए जो लग रहा वो तुम्हारे लिए बताया मैंने। अब देखो ये एंगल एंगल का यूज करके तुम कौन सा भी आर्गुमेंट कितने सिंपल से निकालेंगे ये देखो अभी। चलो कल का क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से अपना चौथा क्वेश्चन था ना, चालू कौन सा क्वेश्चन रह गया था अपना, एक्सरसाइज कौन सी है, ये क्वेश्चन चल रहा था ना, -4 आएगा, ठीक है। ये रहने दो उसको साइड में। सो क्वेश्चन ये चल रहा था -4 आएगा, आर्गुमेंट निकालो थीटा, है ना। इसका थीटा निकालने का था तो इजी वे से निकालेंगे। देखो इसका थीटा कैसा आएगा, वेरी सिंपल। हाउ टू फाइंड द थीटा ऑफ दैट वन, कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to -4 जल्दी बोलो यहाँ पे। ये तो हमारा लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर पहले में का 5वां। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हियर a is equal to 4, sorry, a is equal to -4, b is equal to -4 is there, right? a भी -4 और b भी -4। नाउ इसका पहले मॉड्यूलस निकालेंगे। mod z is equal to अंडर रूट में -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 और 16 कितना हो गया 32। सो कैन वी राइट 32 एज अ 32 कैसे लिखेंगे 16 into 2, अरे काय को सम मालूम है तुम्हारे को, यहां पे लिखोगे 16 दूनी 32, 16 कितना है 4 √2। मॉड्यूलस ऑफ z is nothing but 4 √2 is there। now our interest is to find, अपना इंटरेस्ट क्या में है, तो अपना इंटरेस्ट है फाइंड करने में, क्या फाइंड करने में इंटरेस्ट है अपना, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट आर्गुमेंट विद थीटा। नाउ देयरफॉर एम्पलीट्यूड थीटा इज गिवन बाय, वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, अपन ये by वे ना, ठीक कोई बात नहीं, b by a। चलो क्वेश्चन b मतलब कितना -4 और a मतलब कितना -4, तो ये एक्चुअल आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 से। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया तुम्हारा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 के जगह पे तुम डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू π/4 लिख देंगे, समझो फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्ट इट इज नथिंग बट π/4, डायरेक्ट की वैल्यू ना tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है π/4, बट इज रॉन्ग वन। व्हाई इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट भी माइनस है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, तो ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड क्वाड्रेंट में रहने की वजह से ये π/4 आ ही नहीं सकता। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी है 180 से लेके 270, 180 पासून 270 पर्यंत आहे, त्यामुळे हा π/4 येऊ शकत नाही, एंगल आर्गुमेंट इतना नहीं आ सकता। इसका मतलब ये एंगल की, तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखो आइड एंगल का यूज करके हम इसका करेक्ट एंगल निकालेंगे कितना है। तो देखो हाउ टू यूज द आइड एंगल हियर, इसकी आवश्यकता नहीं आई थिंक सो। देखो अभी कैसे निकालेंगे इसका, एकदम सिंपल वे से। हाउ टू फाइंड द आइड एंगल ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, यही आंसर tan इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 के प्लेस पे कितना आ गया tan π/4 इज देयर, इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट हियर π/4 इज देयर। नाउ इफ इट इज π/4, सो राइट एंगल का यूज मैं कैसे करता हूं, यहां पे देखो ये होगा tan इनवर्स ऑफ, कैन वी राइट tan π/4, तो बोलो ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है, tan π/4 कैसा है प्लस है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस है इसका मतलब, तो मैं प्लस tan का प्लस है पहला और तीसरा, तो उसको मैं तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसे लिखेंगे अपन, tan के एंगल में पाई
पाई पाई प्लस पाई बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्यों? देखो राइट एंगल देखो ना, tan 180 प्लस थीटा, tan के एंगल में 180 है तो tan का क्या आ गया tan, और थीटा के प्लेस में कितना है पाई बाय 4। मतलब एक्चुअली यहाँ पे ये राइट एंगल यूज हुआ, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है tan थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस मतलब थर्ड, थर्ड में tan क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव। तो ये उल्टा है ना, अब ये tan थीटा अगर से है, tan थीटा अगर से है तो ये tan थीटा की जगह पे अपने को समझ में आना चाहिए कि ये tan थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो दो कंडीशन है, पहला और पहले में पॉजिटिव है और तीसरे में पॉजिटिव है। पहले में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है तीसरे में है, तो इसको अपन क्या करना पड़ेगा, ये tan थीटा की जगह अपन लिखेंगे tan ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब वही मीनिंग निकलता tan 180 प्लस थीटा मतलब tan थीटा। तो हम ये tan पाई बाय 4 के लिए इस तरीके से क्या करें अपन यूज, ये tan पाई बाय 4 ये प्लस का है, प्लस है मतलब दो चांसेस, पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट, पहले में आएगा क्या नहीं तीसरे में, तो ये tan पाई बाय 4 को अपन तीसरे के हिसाब से ऐसे लिख सकते क्या tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 एनी एंगल यूज हो गया, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना tan थीटा। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन प्लस माइनस उसका डिसाइड करेंगे। देखो अभी तो ये कितना मिलेगा तुमको एक्चुअल, तो ये tan पाई बाय 4 की जगह पे कितना आ गया tan 180 प्लस पाई बाय 4 मतलब इस कितना tan पाई बाय 4 इज देयर। अब बोलो क्या होता है, ये tan इनवर्स tan कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अगली स्टेप में करेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan, अब सॉल्व करो इसको, 4 पाई और 1 5 कितना हो गया 5 पाई बाय 4, तो अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये कितना मिला 5 पाई बाय 4। अब देखो ये अपना एंगल बराबर है कि नहीं, 5 पाई बाय 4 मतलब कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 45 तो कितना हो गया 225, करेक्ट 225 मतलब इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 के बीच में एंगल आ गया, वो भी कितना है 225, तो 5 पाई बाय 4 या फिर ये कितना तुम्हारा एंगल आ गया, इट इज नथिंग बट 225 डिग्री से। अब ये एंगल करेक्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो एंगल कितना आना चाहिए 180 से 270 के बीच में, और अब कितना है 225। So it is important one. In that one, in this method, we can find any angle of that one. Very simple one. समझ आएगा यहाँ पे? ये important था। अब देखो, समझो ये प्लस का tan पाई बाय 4 है, तो हमने क्या लिखा इसको tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। अब समझो यही अगर कभी माइनस में आ गया, तो मेरे को बोलो tan कहाँ माइनस है? tan सेकंड में और फोर्थ में माइनस है, तो इसको तुम क्या लिखेंगे माइनस tan पाई बाय 4 आया, तो खाली इतना ही फर्क है पाई माइनस पाई बाय 4, ऑटोमेटिकली tan कहां पे चले जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पे वो क्या है माइनस है। इट इज द पोजीशन ऑफ दैट वन। आई होप वेरी सिंपल वन है ना, ये इसका कांसेप्ट था। माइनस अगर सर आया तो सेकंड में ले लेंगे उसको अपन पाई माइनस खींच के, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन 2 पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि दो जगह माइनस है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे पाई माइनस, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या लिखेंगे माइनस की जगह पे 2 पाई माइनस। समझ के लो क्या हो रहा है, एक बार रिपीट करता देखो यहां पर tan अगर से प्लस है तो दो चांसेस है, पहले क्वाड्रेंट में है चौथे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में है तो कोई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। जैसे यहां पे tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, कब अगर से ये ऐसा रहता था 4 प्लस 4i, देखो अच्छे से बता रहा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में, जब तुम एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, तो डायरेक्ट बिंदास लिख देंगे पाई बाय 4, क्योंकि तो दोनों पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में एंगल कितना रहता 0 से 90, 0 से 90 मतलब ये तुम्हारा 0 से 90 कितना होगा 45 डिग्री रह सकता, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 की रेंज है, इसका मतलब 45 डिग्री आंसर करेक्ट है। कब अगर से ये दोनों पॉजिटिव है। अब चेंज समझो ये दोनों नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो अब मेरे को बोलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो क्या अब हम इसके tan इनवर्स ऑफ 1 के लिए पाई बाय 4 लिख सकते क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बता रहे अपन 45 डिग्री,
पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अपने को आइड एंगल का यूज करना पड़ेगा। तो आइड एंगल कैसे यूज करेंगे? अब देखो कि tan वर्स एज इट इज, ये 1 के प्लेस पे tan पाई बाय 4। अब ये बता रहे हैं यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, ये खेल खेलेगा। ये अगर से प्लस है, ये अगर से प्लस है तो tan दो जगह प्लस है, पहला और तीसरा। पहला में तो अपने को जरूरत नहीं है, अपने को तीसरा रखना पड़ेगा। तो tan पाई बाय 4 जगह पे तीसरे के हिसाब से मैं कैसे लिखूंगा? tan ऑफ तीसरा मतलब क्या? पाई प्लस, ऑटोमेटिकली में कहां चलेगा? तीसरे क्वाड्रेंट में। tan ऑफ पाई प्लस, और थीटा मतलब क्या? ये पाई बाय 4 इससे थीटा की प्लेस भी है। अब देखो फॉर्मूला तैयार हो गई, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो 180 प्लस मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एकदम सिंपल है। अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट वैल्यू, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस। क्या करना पड़ेगा उस जगह पे? पाई प्लस। उसी तरीके से समझो ये माइनस में आ गया, तो tan अगर से माइनस में आया तो माइनस में tan कितने जगह? दो जगह, सेकंड और चौथा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से सेकंड में है, जैसा ऐसा है -4 + 4 आए, तो ये आ गया तुम्हारा -4 + -4 है, मतलब ये होगा 4/-4, मतलब tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 ये होगा tan इनवर्स ऑफ -1, मतलब ये आ गया माइनस एज इट इज, और ये 1 के प्लेस पे tan पाई बाय 4। अब बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है? पहला माइनस, दूसरा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब मुझे अपने को ये माइनस tan पाई बाय 4 की जगह में क्या लिखूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ना ये, तो माइनस tan पाई बाय 4 की जगह पे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस, ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल में कितना है? पाई बाय 4 इससे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, इसको सॉल्व करो, 3 पाई बाय 4, 3 गुणिले 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 45 मतलब 135 डिग्री। करेक्ट, एकदम आंसर करेक्ट। 135 मतलब 90 से लेके 180 के बीच में 135 आता, इसका मतलब अपना एंगल क्या है? करेक्ट है। अब देखो